गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 11 लेफ्ट इन चार्ज, पारिवारिक जिम्मेदारी। Ma and Bapu had put on their new clothes. They were going to town to sell the vegetables grown in their small field. Bhola was very happy. He was not going with his parents. He was left in charge to take care of Tadima, 18 years old. A calf, a kid, a rabbit, ducks, a hen with chicks, and a small vegetable field. माँ और बापू वो नए कपड़े पहनकर सब्जी बेचने कहाँ जा रहे थे? शहर जा रहे थे। भोला को उसकी दादी माँ, जिसकी उम्र कितनी थी? 80 साल, 18 ईयर्स के आसपास की थी, उनकी देखभाल के लिए रखा था। वह खुश था। उसे साथ ही जानवरों और सब्जियों की भी देखभाल करनी थी। ठीक। His mother warned with, "Don't forget to feed the cattle and the bird. Keep an eye on the rabbit. It is playing there on the green grass in the vegetable field." उसकी माँ ने उसे वॉर्न किया, चुनौती दी कि जानवरों और जानवर मतलब एनिमल्स और बर्ड्स हैं, उनको खाना देना मत भूलना। रैबिट के ऊपर नज़र रखना, वो हरी सब्जियों के बगीचे में खेल रहा है। ग्रीन वेजिटेबल के फील्ड में क्या कर रहा है? खेल रहा है। His father advised him, "Take care of Dadima, keep her room warm with charcoal and give her warm milk, give her medicine on time." उसके पिताजी ने उसे एडवाइस दी, सलाह दी कि दादी माँ का ख्याल रखना और उन्हें चारकोल जलाकर उनका कमरा गर्म करना, उनके कमरे को चारकोल जलाकर गर्म करना, वार्म करना, उन्हें गर्म दूध देना, उनकी दवाइयाँ भी समय पर देना। भोला promised, nodding his head. He reminded them to bring some sweets, color, pencil and drawing book. भोला ने सिर हिलाकर, मीन्स हेड नोडिंग मतलब क्या होता है? नोडिंग मतलब हिलाना, ठीक है। तो हेड नोडिंग मीन्स भोला ने सर हिलाकर उनसे वादा किया। उसने उन्हें कुछ मिठाइयाँ, कलर और ड्राइंग बुक लाने को कहा, अपने माँ बापू को। Their bullock cart was going through the narrow street of the village. The waving hands of parents were still visible. Bhola helped Dadima to lie down on the coat lying in the corner of the courtyard. He went to the backyard to bring some coal for the angithi to keep Dadi Ma warm as she was feeling very cold. He saw the calf making sound, moo moo. "Oh, you want some grass?" Bhola kept down his bag, picked up a bundle of grass and ran to the calf. क्या होता है, उनके जो माँ पापा हैं वो बैलगाड़ी में बैठते हैं और सकरी गली से निकलते हैं। भोला अपने माता पिता को हाथ हिलाता हुआ दिखाई दे रहा था, ठीक है। भोला ने अपनी दादी माँ को कोट पहनाने में मदद की। घर के पीछे कुछ कोयले थे, मीन्स चारकोल को लाकर अंगीठी में डाला ताकि दादी माँ को ठंड ना लगे। उसने देखा जो बछड़ा है, जो काल्फ है, वो क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है। उसने उसे कुछ घास दी खाने को। In the corner of courtyard, he saw the kid jumping and crying, "Me? What about me?" तभी उसे किनारे पर कूदते हुए बकरी दिखी। वह घास का बंडल नीचे रखकर घर के बाहर से कुछ ताजे पत्ते लाने गया। किसके लिए? बकरी के लिए, गोट के लिए। He kept down the bundle of grass and ran outside the house to get some fresh green leaves to the kid. है ना? Only then they saw the rabbit in the vegetable field. He forgot to collect leaves for the kid and rushed toward the rabbit with her stick. He pushed the rabbit back
to its place. Coming back to the house, he found the hen with its stick smacking noise. Kutuk 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 kun. अब क्या होता है कि बकरी के लिए वो क्या लेने के जाता है, हरी पत्तियाँ लेने जाता है। वह बकरी के लिए हरी पत्ती इकट्ठा करना भूलकर अब क्या करने लग जाता है, रैबिट को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। एक छड़ी की मदद से खरगोश को वापस उसकी जगह पर भेजता है। घर के अंदर आते ही उसने मुर्गी और उसके चूजे को आवाज़ करते देखता है, जो आवाज़ क्या कर रहे थे, कुट कुट कुटक्कुन। He jumped to get some corn in the basket for them. There is a courtyard. An army of duck and duckling was marching, making noise. Quack, quack. Bhola kept his basket on corn on the floor. He ran to get some water from the well behind the house and came back with the bucket full of water. He kept the bucket also in the middle of the courtyard for the ducks, and feeling tired went to the veranda where Dadi Ma was sleeping in the sun. अब उस वह कूदकर गेहूं की टोकरी निकालता है, ठीक। और तभी उसे आंगन में बत्तख और उसके बच्चों की फौज की आवाज़ आती है, जो क्वाक क्वाक की आवाज़ कर रही थी। वे सभी एक कतार में चलते हुए दिखाई देते हैं। भोला गेहूं की टोकरी को जमीन के में रख देता है और घर के पीछे कुएं से एक बाल्टी पानी लेकर आता है। उसने बाल्टी आंगन के बीच में बत्तखों के लिए रख दी और वह थककर बरामदे में आ गया, जहां दादी माँ धूप में सो रही थी। वह जमीन पर लेटा और सो गया। He rolled down the floor and went to sleep. वह बरामदे में लेटा और सो गया। A loud barking woke up Dadi Ma. She cried, "Oh my God, what have you done, Bhola?" Bhola sprang on his feet, blinking his eyes. He could see the duck flapping their wings. They had rolled down the corn on the courtyard floor. जैसे वो सोया, एक जोरदार आवाज़ आई, किसकी, कुत्ते की भौंकने की। और दादी माँ क्या हो गई, जाग गई और वह चिल्लाई, अरे भगवान, ये तुमने क्या किया। भोला अपनी आंखों को मसलता हुआ पैरों पर खड़ा हुआ और उनके उसने देखा कि बत्तख उनके पंख हिला रहे थे और उन्होंने गेहूं को आंगन में गिरा दिया था। किसने, बत्तख ने। The hen and the chicks were feeding themselves outside the house. The goat was chewing some green leaves of vegetables on the vegetable patch. The rabbit was trying to go toward the well. The calf was running and jumping her and there with some grass in his mouth. मुर्गी और चूजे खुद ही खा रहे थे, जो वहाँ पर बिखरे हुए थे, क्या, गेहूं के दाने। और बकरी कुछ हरी सब्जियां खाने के लिए कहाँ घुस गई थी, और वेजिटेबल फील्ड में। खरगोश कुएं के पास जाने की कोशिश कर रहा था। बछड़ा मुंह में कुछ घास लिए इधर उधर दौड़ रहा था। सडनली ही हर्ड जिंगलिंग बेल ऑफ द bullock cart coming near the house. He ran to it, jumped into the bullock cart, clinging to his mother's lap. He murmured, "Oh, what a lot there was to do in the house, Mom." अचानक उसे घर के पास आते हुए बैलगाड़ी की घंटी सुनाई दी। वह उनकी तरफ दौड़ा, बैलगाड़ी में बैठ गया और अपनी माँ की गोद पकड़कर वह बोला, अरे कितना सारा काम घर में करना था माँ। They all went inside the house with things. The parents noticed that no one was complaining or making noise, not even hen and chick, duck and duckling, the kid and the calf. Dadima was sleeping in her coat. Babu patted Bhola's shoulders. So our little one left in charge. How was the day? वे सभी सारे सामान के साथ अंदर गए। उसके माता पिता ने ध्यान दिया कि कोई भी शिकायत या शोर नहीं कर रहा है, सभी अपनी जगह में हैं। ना मुर्गियाँ, ना उनके बच्चे, बत्तख और उनके बच्चे, बकरी और बछड़ा भी नहीं। दादी माँ अपने कोट पहने हुए सो रही है। बापू ने भोला की पीठ थपथपाई और कहा, तो हमारे छोटे से बच्चे, क्या पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ तुमको आज का दिन कैसा लगा? They all smiled slowly. Bhola was happy to see the things that Ma and Bapu and brought
फॉर हिम। वे सभी हंसे और भोला उसके माँ और बापू द्वारा उसके लिए लाई चीज़ों को देखकर बहुत खुश हो गया। ठीक है, तो ये हुआ पारिवारिक जिम्मेदारी, जो कहीं ना कहीं आप लोग भी संभालते होंगे, है ना। ओके, तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आई होप सो ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद आप कर लेंगे वर्ड मीनिंग्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।